हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 9वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। Janma, birth, karma, work, cha also, me of mine. Divyam, transcendental, evam like this. Yah, anyone who, Vetti, knows, Tattvataha, in reality, Tektva, leaving aside, Deham, this body, Punah, again, Janma, birth, na, never, Iti, does attain, Mam, unto me, Eti, does attain, Sah, he, O Arjuna, O Arjuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Purport by His Divine Grace Swami Srila Prabhupada. ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Purport. The Lord's descent from his transcendental abode is already explained in the 6th verse. One who can understand the truth of the appearance of the personality of Godhead is already liberated from material bondage, and therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting this present material body. Such liberation of the living entity from material bond is not at all easy. The impersonalists and the yogis attain liberation only after much trouble and many births. Even then, the liberation they achieve, merging into the impersonal Brahma Jyoti of the Lord, is only partial, and there is the risk of returning to this material world. But the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord, attains the abode of the Lord after ending this body and does not run the risk of returning to this material world. In the Brahma Samhita 5.33, it is stated that the Lord has many forms and incarnations. Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam. Although there are many transcendental forms of the Lord, there are still one, and they are still one and the same Supreme Personality of Godhead. One has to understand this fact with conviction, although it is incomprehensible to mundane scholars and empiric philosophers, as stated in the Vedas. Purusha Bodhini Upanishad. Eko Devo Nityalina Lila Anurakto Bhakta Vyapi Hridaya Antaratma. The one Supreme Personality of Godhead is eternally engaged in many transcendental forms in relationship with his unalloyed devotees. This Vedic version is confirmed in this verse of the Gita personally by the Lord. He who accepts this truth on the strength of authority of the Vedas and of the Supreme Personality of Godhead, and who does not waste time in philosophical speculations, attains the highest perfectional stage of liberation. Simply by accepting this truth, on faith, one can without a doubt attain liberation. The Vedic version Tattvamasi is actually applied in this case. Anyone who understands Lord Krishna to be the Supreme, or who says unto the Lord, "You are the same Supreme Brahman," the personality of Godhead, is certainly liberated instantly, and consequently his entrance into the transcendental association of the Lord is guaranteed. In other words, such a faithful devotee of the Lord attains perfection, and this is confirmed by the following Vedic assertion. Tamev vidivati mrityumeti nanyah pantha vidyate ayanaya. One can attain the perfect stage of liberation from birth and death simply by knowing the Lord, the Supreme Personality of Godhead, and there is no other way to achieve this perfection. Shvetashvatar Upanishad.
That there is no alternative means that anyone who does not understand Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead is surely in the mode of ignorance, and consequently he will not attain salvation simply, so to speak, by licking the outer surface of the bottle of honey, or by interpreting the Bhagavad Gita according to mundane scholarship. Such empiric philosophers may assume very important role in the material world, but they are not necessarily eligible for liberation. Such puffed up mundane scholars have to wait for the causeless mercy of the devotee of the Lord. One should therefore cultivate Krishna consciousness with faith and knowledge, and in this way attain perfection. हरे कृष्णा। तो एक मिनट। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम इस श्लोक में पढ़ रहे थे, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान कैसे अवतरित होते हैं। ये पहले ही छठे श्लोक में बता दिया गया है कि वो जो अवतरित होते हैं भगवान अनबॉर्न हैं, और लेकिन फिर भी वो हर मिलेनियम में आते हैं, हर युग में आते हैं, ताकि वो जीवों के कल्याण के लिए, उसमें उनका अपना कोई नियत ड्यूटी है ना कोई उनकी ऑब्लिगेशन है ऐसे। और भगवान कब कब आते हैं तो ये भी हमने पिछले 2 श्लोक में देखा है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के इस नेचर को समझ लेता है, उनके जन्म कर्म को अगर कोई समझ पाता है, तो वो व्यक्ति जो है वो इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। तो आप कहोगे कितना आसान है, कि बहुत आसान है ये तो, कि हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये समझना है कि भगवान जो आते हैं इस दुनिया में वो किसी प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते, बल्कि वो स्वयं की इच्छा से आते हैं। जब धर्म का पतन होता है तो धर्म के उत्थान के लिए, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके विनाश के लिए, और भक्तों के उद्धार के लिए या उनके सुख प्रदान करने के लिए। तो ये जो चीज़ है जब कोई व्यक्ति समझ लेता है तो उसका निश्चित है कि वो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा इस भौतिक जगत में, और वो आध्यात्मिक जगत को चले जाएंगे। तो कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात है दरअसल, क्योंकि समझे ना, ये जो है ये थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है ये मेयर। इवन लोगों को तो थ्योरेटिकल नॉलेज पे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। सबसे पहली बात तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि कोई ईश्वर है भी इस दुनिया में। हम देखते हैं अधिकांशतः लोग जो हैं वो एथिज्म जो है उसकी तरफ में इंक्लाइंड है। वर्तमान में ये जो है प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, या तो एग्नोस्टिक्स हो जाते हैं, तो एथिज्म और एग्नोस्टिक जो है अभी बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति बढ़ रही है। और जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं वो लोग बहुत सारे इतने सारे पाथ हैं उसके अंदर में गुमराह हो जाते हैं। कोई प्रकृति कहता है कि प्रकृति ही सब कुछ है, कोई कहता है कि सब माया है, सब ब्रह्म है, ब्रह्म के अंदर में लीन होना है सबको, कोई ऐसी बात करते हैं। अधिकांशतः लोग तो धर्म कर्म कांड धर्म ये और इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। देवी देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं ताकि उनको अच्छा सुख मिले, सुखमय जीवन हो उनका, इस जीवन में सुख मिले, अगले जीवन में सुख मिले। तो ये सब चीज़ों में अधिकांशतः लोग जो है दरअसल इन्हीं सब चीज़ों में फंस जाते हैं। उसके बाद कुछ एक जो बचते हैं वो देवी की पूजा कर रहे हैं, कोई शिव की पूजा कर रहे हैं, और कोई फिर डेमिगॉड वर्शिप में रह जाते हैं। और फिर जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उसमें बहुत अधिकांशतः लोग को कुछ ज्ञात नहीं होता कि सही में कृष्ण कौन है, सही में विष्णु कौन है। तो इस चीज़ का ज्ञात नहीं होता। तो उनमें से जो विरले होते हैं उन्हें ये जो अवसर मिला है ये मनुष्य जीवन में, तो उसके अंदर में ये जो भक्तों के द्वारा जो संपर्क में आते हैं और असली ज्ञान का, असली भगवत ज्ञान का वो सेवन कर पाते हैं। और उसमें से भी बहुत कम ऐसे होते हैं जो सही में इस भगवत ज्ञान का जो
मार्ग है भगवत प्राप्ति का, उसको सही में फॉलो कर पाते हैं और अंत तक फॉलो करते हैं। हमने देखेंगे बड़े बड़े बहुत बहुत सीनियर सीनियर वैष्णव जो हैं वो बड़े बड़े डिवोटीज, वो कुछ समय तक चलते हैं, उसके बाद हो सकता है वो छोड़ दें पाथ को कुछ समय के लिए, फिर बाद में वापस रिज्यूम करें। तो इसको कंटिन्यू करना पूरे विगर के साथ में जीवन तक का पालन करना एक अपने आप में बहुत बड़ा टेस्ट है और अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये और ये वही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्होंने सही में ये चीज़ का अर्थ समझा हो या उसके अपने जीवन में पालना कर रहे हो। तो ये ऐसी चीज़ है, तो इसीलिए ये जो है बहुत रेयर चीज़ हो जाती है। तो ये जो प्रभुपाद कहते हैं सच लिबरेशन ऑफ द लिविंग एंटिटी फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज इज नॉट एट ऑल इसी, कि ये मुक्ति बहुत आसान नहीं है। और ये जो मुक्ति है ये अलग मुक्ति है, जो जिसकी बात कि ये इम्पर्सनलिस्ट्स वगैरह जो करते हैं, ये योगीज जो ध्यान लगाते हैं वो करते हैं, ये उस मुक्ति ऐसा नहीं है, ये उससे अलग मुक्ति है। क्योंकि अलग मुक्ति कैसे है कि इसके अंदर में एक बार जो जाता है, इस मुक्ति को जो प्राप्त करता है एक बार, वो दोबारा लौट के इस भगवत धाम में, इस भौतिक जगत में नहीं आता। लेकिन जो दूसरी जो मुक्ति होती है, जो कि योगी ध्यानी ये मायावादी जो फिलोसफर्स उनकी बात करते हैं, उस मुक्ति से वो मुक्ति नहीं है कंप्लीट, ब्रह्मन एफिलियंस से उसमें वो मर्ज हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ एक्टिविटी ना होने के कारण, सोल की तो नेचर क्या है कि टू बी एक्टिव, एक्टिविटी ना होने के कारण उनका वापस पतन हो जाता है इस भौतिक जगत में, और फिर वो जो है सोशल सर्विस और इन सब चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करते हैं। तो इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति में भी देयर इज रिस्क ऑफ रिटर्निंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन भक्तों के लिए जो है simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of एक भक्त के लिए बस इतना ही है कि वो जो है भगवान की प्रकृति समझे, उनके शरीर के बारे में समझे और उनके एक्टिविटीज के बारे में समझे, और वो भौतिक जगत को त्याग देंगे और आध्यात्मिक जगत पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ है, और ये श्रील प्रभुपाद जो है अलग अलग शास्त्रों से कोट करके बताते हैं। उसमें पुरुष बोधिनी उपनिषद है और फिर श्वेताश्वतार उपनिषद को भी कोट करते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी रोचक बात प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नहीं समझा है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम है और वो व्यक्ति जो है तमोगुण के अंदर में है और उसको मुक्ति नहीं मिल सकती वैसे। तो इस वजह से कितने ही ज्ञानवान व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उनके ज्ञान का नॉलेज का कंक्लूजन ये नहीं है कि परम जो सत्य है वो भगवान श्री कृष्ण है, वे ही जो हैं ईश्वर हैं, सब उन्हीं के अंदर अधीन है, तो उसका ज्ञान इनकम्प्लीट है और वो तमोगुण में है और उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये सब योगी और ये सब सिद्धि जो हैं, ये सब धरी की धरी रह जाएंगी और मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ हम आज का जो ये है कंक्लूड करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।